reproduction. So which cells are involved in reproduction? So in case of males, or in case of males, it is sperms, that is the gametes, and in case of females, it is nothing but the ova or the egg cells. Okay, so we all know that the germ cells are involved in a reproduction, and whatever is present in a germ cell, there are chances that it will get passed on to the next generation, right? मतलब अगर parents के पास है तो it will go to the next generation. Why? Because it is present in a gametes, that is a sperm and a ova. So there are high chances that जब भी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर रहेगा या पर्टिकुलर डिफेक्ट रहेगा, so we all know, like जैसे कि हमने देखा कि एक्स लिंक क्रोमोसोम जैसे है जहाँ पे हेमोफिलिया का है या फिर हंटिंगटन डिसीज है, ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे होते हैं जनरली एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं. और जैसे एक्स क्रोमोसोम पास ऑन होगा फ्रॉम मदर टू द son or to the daughter, the chances that the individual will suffer from the disease also increases. Okay, so that is one thing. Now we will see in detail. So I hope abhi screen share hoga. Just 1 minute more. Sorry for the delay. Yeah, so abhi hoga. Germline gene therapy. The name itself, जो नेम बता रहा है कि germline gene therapy मतलब क्या कि उसका जो germ cells रहेगा उसके genes को हम उसमें हम लोग modification करेंगे. So basically what is this? So in this method, healthy genes can be introduced into a germ cells, which are mainly includes sperm, eggs, and early embryos. So when I say sperms, it is a male gamete, eggs, it is a female gamete, and the early embryos generally the zygote stage, जहाँ पे it is not well developed, but just बोलते ना division and redivision होते रहता है. The cells will fuse, it will form a zygote, and the zygote will start dividing and redividing to form a typical mass of the cells, and बाद में उसका proper development चालू हो जाता है. But this is very early stage, okay. And then what is the benefit of this particular therapy is like it allows transmission of a modified genetic information to the next generation. So if a particular disease, let's say, is not is something which is can be inherited, matlab it can be passed on from parents to the offspring, so obviously it is better to go for germline therapy. Because क्या है कि अगर मुझे पता है कि ओके बच्चे को भी होने ही वाला है, देयर आर हाई चांसेस दैट द बच्चा विल सफर फ्रॉम द पर्टिकुलर डिसीज जो कि एक्स लिंक है या फिर जो कि जेनेटिक है, तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर जीन थेरेपी. बिकॉज दो प्लस पॉइंट्स है, जो पेरेंट्स है जो करंटली सफर कर रहे हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, प्लस देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दैट कि जो बच्चा होगा फ्यूचर में उसको भी ये डिसीज नहीं होगा करके. So that's why it is important. So but then again, though it is highly effective और हम लोग like prevent कर सकते हैं, and there are many disorders which can be cured by this particular therapy. However, it is not encouraged for applications in a human beings due to variety of technical and ethical reasons. So I think this is something again and again मैं बता रहा हूँ कि okay, ethical reasons are very very important. Because हम लोगों ने इतने सारे regulations and rules बना के रखे हैं, but somewhere somehow like someone will make sure that at least कोई ना कोई रूल तो ब्रेक होगा ही होगा. Okay, so the problem is like कि people are not that serious, or sometimes the over enthusiasm or over ambitious nature, मतलब हाँ मुझे ये करना है मुझे वो करना है, can lead to some wrong things. And that's why, because अगर यहाँ पे देखा it is not something a technical thing. जैसे हम लोग लाइक इंजीनियरिंग में हम लोग को ठीक है कोई मशीन बना है, मशीन को कुछ तो कर रहे हैं एंड ऑल, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एक लिविंग थिंग से बोलते हैं ना प्ले कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं. बिकॉज
it is not that easy, first thing. And second thing is like a small mistake, a very small mistake can be like lead to horrible thing. So to improve that or to protect that, there are many regulations, and that's where the ethical issues come in the picture. Who knows, मतलब okay, person will start. तो अभी किसी ने जीन थेरेपी के नाम से they will start doing something, and then they will start कि okay, future में बच्चा होने वाला है तो वो girl है या boy है, that they will start taking. All these things happens, and then again that female feticide thing, and then uh, early abortion stages and all, like these all things happen, and that's why ethical issues are there. I hope I'm clear. Okay, any doubt in germline therapy? हाँ सर, वो एथिकल रीजन का मतलब समझ में नहीं आया, उसका मीनिंग क्या है प्रॉपर? ओके, एथिक्स मतलब क्या? सी व्हाट आर एथिक्स की? एथिक्स मतलब अ प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स और अ प्रॉपर फॉर्मेट जो हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग ओके, तेरे अगर हमारे फैमिली में एथिक्स होते हैं कि ओके सुबह सुबह जल्दी उठना, मतलब नॉर्मल उठते हैं हम लोग, सब लोग काम पे जाते हैं, शाम को उठते वापस आते हैं। मतलब टिपिकल फैमिली हैज अ एथिक्स, मतलब रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। कैसे कि ओके सबको खाना साथ में ही खाना है, आना, मतलब बोलते ना एक टिपिकल थिंग जो हम लोग फॉलो करते हैं। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो करना चाहिए। बट कभी कभी कैसे होता है कि पीपल जस्ट बोलते हैं ना, रूल ब्रेकिंग हो जाता है कि ओके ये नहीं कर, जो नहीं करना चाहिए वो भी करना चालू हो जाता है। तो दैट इज समथिंग कि बोलते हैं कि एथिकल कंसर्न्स और एथिकल इश्यूज हो जाता है, बिकॉज जो प्रपोज सेट ऑफ रूल्स है वो हम लोग फॉलो नहीं करते, और उसके वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज होने लगता है। सो एथिक्स इज अ वेरी बोलते ना वाइड टर्म बेसिकली। So basically, it is a set of principles or set of morals or a set of rules that will govern a person's behavior or a conducting of an activity. मतलब a typical definition is like okay, it can conduct, it is a set of principles or the rules जिसके वजह से decided है कि okay, this particular thing X है, मतलब कोई activity X है तो उसको ऐसे ही करना है। यू कैन डू योर ओन थिंग्स, लाइक जैसे हम लोग को चाहिए, जस्ट वॉट एवर इज गिवन, वॉट एवर इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है? ओके सर। या मतलब एग्जाम्पल देना है तो ठीक है, तो पर्टिकुलर जीन क्लोनिंग कर रहे हैं सपोर्ट लेट्स से, तो मतलब देयर इज स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कि जीन क्लोनिंग कैसे करना है करके। तो यू कांट यूज कुछ भी और मतलब कैसे भी। लेट्स से मुझे स्टेम सेल्स पे काम करना है, तो इट इज डिसाइडेड दैट कि स्टेम सेल्स पे जो काम करेंगे वो जो स्टेम सेल्स उनको लेना है या फिर आइसोलेट करना है, ऑब्वियसली दे विल कल्चर इन अ लैब में, वो लोग अच्छे से उनको ग्रो करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे। दैट इज अ स्टेज 2। बट जो स्टेज 1 है या फिर स्टेप 1 है ऑफ द प्रोसेस ऑफ द स्टेम सेल रिसर्च, उसमें क्या होता है, वी हैव टू गेट स्टेम सेल बेसिकली फ्रॉम समवन अदर सोर्स। देयर आर सम नेशनल और इंटरनेशनल लैब्स जो स्टेम सेल्स प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आई मीन द प्रोवाइड करते हैं, मतलब इन लोगों ने स्पेशल सेल्स बोलते ना आइसोलेट करके रखा है अपने पास। जैसे हमने बोला कि लाइब्रेरी है अपने पास, जीन लाइब्रेरी, वैसे सेल्स का भी एक स्टोरेज होता है एक जगह पे। सो इन इवन इन महाराष्ट्र वी हैव इट इन पुणे, एनसीसीएस पुणे, नेशनल सेंटर फॉर सेलुलर साइंस बेसिकली। सो ऐसे सब सेंटर्स होते हैं कि जो प्रोवाइड करते हैं सब सेल्स। बट देन rather than taking the cells from this particular people, मैंने ऐसे ओवर एक्साइटमेंट में होकर मैं गया कोई तो आईवीएफ सेंटर में, मैंने बोला कि हाँ अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है, गिव इट टू मी, आई विल टेक द एम्ब्रियो, आई विल जस्ट डू थोड़ा सा उसका डिसेक्शन, आई विल ट्राई टू टेक आउट द स्टेम सेल बाय माय सेल्फ एंड आई विल यूज दिस। दिस इज नॉट द फॉर्मेट। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू कांट गो इन एनी आईवीएफ center, you can't get any embryo, you can't just kill the embryo, and you can't just dissect it, you can't take a cells out। मतलब okay, mera ultimate aim is to get the stem cells, but there are two ways I mentioned. One way, you can go to the national centers and you can order it and you can get it, which is a very good and a normally followed way. Other way is like you can go to IVF center, you can get your embryo, you can kill it, you can do whatever you want to do,
which is not right thing. You can't go and take any embryo. You don't have any right कि तुम लोग जाके किसी को भी मारो. Embryo मतलब even though it is not a well developed, but it is a living cells. It is a set of living cells. मतलब वो जिंदा एक उसको हम लोग entity consider करते हैं. You know, even though it is not well developed, उसके पास शायद वो stage में हाथ पैर रहेगा प्रॉपरली नहीं रहेगा, but फिर भी it is a form of life. So we don't have any right to take anyone's life basically. फिर वो एक्स्ट्रा है, वो यूजलेस है, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस. वो एक्स्ट्रा है, वो यूजलेस, उसका क्या करना है, देयर आर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर दैट. ये लोग ने कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है या कैसे उसको मैनेज करना है. बट नोबडी गिव्स मी राइट टू गो देयर एंड टेक इट. सो दिस इज कॉल्ड एज एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स. नॉर्मल एथिक्स क्या है कि तुम लोग ऑर्डर करो और तुम लोगों को कोई तो सेंटर प्रोवाइड करेगा. और एथिकल वायलेशन क्या है या फिर उसका कंसर्न्स क्या है कि लोग ऐसे कुछ ना कुछ खुद का दिमाग लगा के दे जस्ट गो समवेयर एंड दे गेट खुद का रूल सेट करके दे डू समथिंग without considering any ethics or any rules or any principles. So I hope now this example is well explained. समझा? Hello? Yes, sir. Yeah, great. So that is about the germline gene therapy. And now let's move toward the somatic cell gene therapy. The slides थोड़ा cluttered लग रहा है, I know, but they can't help it. So सोमैटिक सेल जीन थेरेपी क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि जीन जर्म सेल थेरेपी में हम लोग जर्म लाइन के सेल्स पे आप एक मॉडिफिकेशन करेंगे. तो इन केस ऑफ जर्माइनल जीन सोमैटिक सेल जीन थेरेपी हम लोग सोमैटिक सेल्स को अलग अलग जीन से या फिर डिफरेंट जीन से ट्रीट करेंगे टू चेंज अ पर्टिकुलर डिसीज और टू हैव सम पर्टिकुलर इफेक्ट इन इंडिविजुअल. So यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल आएंगे. इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन थेरेपी we introduce a gene into somatic cells. So what are the different types of somatic cells? It can be a bone marrow cell, it can be a hepatic cell. Hepatic cell is nothing but a liver cell. Okay, liver का जो cells है उसको hepatocytes भी बोलते हैं. Then fibroblast cells. Fibroblasts are the cells present in a normal like tissues. So they are having different functions. Sometimes also important for giving a typical strength to the tissue. The endothelium and pulmonary epithelial cells, if you remember, these are present in blood vessels. So I think हमारा circulation chapter is going on. So if in that chapter if तुम लोगों ने वो topic cover किया है, types of blood vessels, जहाँ पे they talk about the arteries, they talk about the vein, they talk about the capillaries. So in that part it is covered that जो उसका arteries का internal part is by endothelium, फिर उसमें कौन कौन से epithelial tissues present होते हैं, how it makes the wall of the cells and all. Then comes central nervous system, which means what is the central nervous system? मतलब brain and a spinal cord. Mainly it includes brain plus spinal cord. तो उसके जो भी cells है like neurons है, spinal cord cells है, that include that data considered as a somatic cells. Then endocrine cells. So in what are endocrine cells? Endocrine cells are the cells which are involved in secreting a typical chemical factors called as hormones. So endocrine cells are cells of a typical gland called as endocrine gland, which can produce hormones, and hormones play very important role in our body in control and coordination. And whatever chemical loss typically happens in our body is because of the hormones. They starting from development to the puberty to the adulthood stage, basically everywhere hormones play important roles, and that's why endocrine cells are important everywhere. There is something called the exocrine cells also, which are also involved in hormone production, but endocrines are more common because endocrine secrete their hormones directly into the blood. So there is no ऐसा बोलते ना पाइपलाइन का सिस्टम कि जिसके वजह से पहले वो एंडोक्राइन से कहीं और जाएगा, कहीं और से फिर वापस कहीं और जाएगा. ऐसा नहीं, डायरेक्टली जब भी प्रोड्यूस होगा उसको डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट किया जाता है
and because of that endocrine glands are called as ductless gland. DUCT, duct मतलब kind of pipeline और channel थी, and less मतलब जिसमें present नहीं है. तो endocrine glands are called as ductless gland. I hope I'm clear. Then there comes something called as smooth muscle cells and blood vessels. So smooth muscles and the blood muscles again, blood vessels are again tissue forming cells. So blood vessel cells involved in a circulatory system, and smooth muscle cells are involved in many visceral organs. Basically liver में होता है, pancreas में होता है, lungs में अगर होता है, and its activity is controlled by involuntarily, मतलब वो अपने आप सब काम करते रहता है. Then there is something called as modification of a somatic cells. ओके मतलब क्यों क्यों क्या होता है इसमें एग्जैक्टली, जैसे मैंने बोला कि अगर जर्म लाइन में किया तो इट कैन बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, बट द मेजर डिफरेंस इज लाइक अगर सोमेटिक सेल में कुछ मॉडिफिकेशन किया इट विल ओनली अफेक्ट द पर्सन बीइंग ट्रीटेड, जिसके अंदर किया है उसी को होगा उसका फायदा, एंड द मॉडिफाइड क्रोमोसोम्स और द सेल्स कैनॉट बी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, मतलब वो आगे पास ऑन नहीं होगा. ओके, सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस. तो इफ एनीवन आस्क यू कि क्या है मेजर डिफरेंस बिटवीन जर्म लाइन सेल जीन थेरेपी एंड सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, तो तुम्हें क्या याद रखना है, एक में जीन्स कैन बी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, एक में ऐसा नहीं होता है. Then comes a somatic cell gene therapy is the only feasible option, and the clinical trials have been already employed. So there are many clinical trials going in a there are many clinical trials which are actually going on, मतलब जहाँ पे हम लोग ट्राई करें कि ये एक्चुअली वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है करके. And for treatment of the acquired disorders such as cancer and rheumatoid arthritis, the blood disorders including SID, Gaucher disease, familial hypercholesteremia, hemophilia, phenylketonuria, cystic fibrosis, sickle cell anemia are the different diseases for which we are trying the somatic cell gene therapy. So before moving ahead, just give me 2-3 minutes. I will back. I have to give a call. epithelial cells कहाँ पे होते हैं? Okay, so pulmonary epithelial and the endothelium cells. So basically pulmonary arteries, pulmonary veins. I hope you remember these terms. मतलब ये कहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने, related to heart. तो कार्डियक टिश्यूज के, कार्डियक टिश्यू मतलब हार्ट के रिलेटेड जो था कि जो ब्लड्स को लेके जाते हैं, ब्लड्स को लेके आते हैं. When I say arteries, it carries blood from heart to the organs. Then when I say veins, it carries blood from organs to the heart for again purification and all. So ये सब टर्म हमने सुने. तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि एंडोथेलियम पल्मोनरी ये जो सेल्स है, these are actually involved in development or for producing this particular arteries and veins basically. So इसका
काम तो होगा जो भी होगा, वॉट एवर फंक्शन इट विल कैरी, इट इज जनरली related to the heart tissue basically. और endothelium is also a type of tissue जो internally present होता है in this particular arteries and the veins basically. Okay, so these are just a types of different cells present in a human system. This is just a very small list. अगर हम लोग देखेंगे in detail, there are so many cells present, like different types of cell. इन्होंने ना तो लंग सेल्स मेंशन किया है, ना तो मतलब दे हैव जस्ट मिस्ड ऑन सम सेल्स बिकॉज इट इज जस्ट एग्जांपल कि क्या क्या आता है अंडर सोमैटिक सेल्स. ओके, सोमैटिक सेल्स, आई एम सॉरी. सो इट इज जस्ट एग्जांपल. तो देयर आर मेनी सेल्स आर मिसिंग, बट ये जो भी लिस्ट दिया है, नो मैटर एंडोथेलियम है या पल्मोनरी आर्टरियल सेल्स है, ये सब आते हैं अंडर नॉर्मल सोमैटिक सेल्स. तो अगर तुम लोग को याद है इन FY आई थिंक लाइक इन फर्स्ट ईयर तुम लोग को शायद होगा human tissue, जहाँ पे we study about the epithelial tissues, we study about connective tissue, adipose tissues, then there is a blood, like in everything in a detail. So all those cells come in a picture as a somatic cells only. जब मैं बोलता हूँ germ cells or a germline cell, it just include the gametes, that is the sperms and the eggs, which are actually gonna transfer to the next generation. Okay, I hope I'm clear. आपने समझा? हाँ सर समझा. Yeah, so that is about the somatic cells, and as I mentioned, it is a feasible option and the clinical trials have already employed. So काम चल रहा है, few are approved. So basically clinical trials take a time कि कितना सक्सेसफुल हो रहा है, कितना कितना नहीं हो रहा है करने के लिए, वो सब देखने में it takes time. Even now, अगर तुमने देखा रहेगा for corona, the Covaxin trials are going on. It is taking time. So it will work at some other place, like we are not very sure, but then there are n number of diseases जहाँ पे जिसके लिए clinical trials चल रहे हैं और people are trying to work out कि कैसे उसको prevent कर सकते हैं using a gene therapy. If you remember the number, 5000 से ज्यादा diseases है जिसको single gene की वजह से like they are caused because of a single gene mutation or single gene defect. So there are so many options and opportunities for the researchers कि okay चलो इस पे काम करते हैं, उस पे काम करते हैं. This is just the list of diseases. So Gaucher's is something related to some enzyme is modified. SCID is a severe combined immunodeficiency. So SCID, SCID मतलब यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम होता है वो काम ही नहीं करता है. वो B cells and T cells जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं. B cells is a type of lymphocyte. T cell is also a type of lymphocyte. तो B मतलब फ्रॉम बोन मैरो, T मतलब फ्रॉम थाइमस. सो डोंट गेट मेस अप क्या रे B क्या है T क्या है, ऐसा क्या बोल रहा है ये बंदा. तो B मतलब द सेल्स फ्रॉम बोन मैरो एंड T सेल्स मतलब द सेल्स व्हिच आर मैच्योर्ड इन अ थाइमस ऑफ द बॉडी. सो ये जो B एंड T सेल्स होते हैं दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन अ इम्यून सिस्टम, बट देन इन केस ऑफ स्किड देयर आर सम म्यूटेशंस हैपनिंग इन अ पर्सन और उसके वजह से दोनों भी अफेक्ट नहीं होते, मतलब दोनों भी सेल्स काम नहीं करते एंड द पर्सन सफर फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ लाइक इम्यून कॉम्प्रोमाइजेशन. तो उसका थोड़ा भी कुछ हुआ इन्फेक्शन तो इट विल बी लाइक अ मेजर प्रॉब्लम. सो दैट इज द जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. जस्ट कीप फ्यू एग्जांपल्स इन अ माइंड, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि उसका डिफरेंस क्या है वो समझो. ओके, नाउ तुम लोग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि टेल मी इन डिटेल अबाउट द कैंसर और स्किड और लाइक इन डिटेल अबाउट द गॉचर डिसीज. ये सब अभी मतलब ठीक है, यू शुड नो व्हाट इज द कंडीशन की प्रॉब्लम क्या है करके, बट नॉट इन सो मच ऑफ डिटेल कि क्यों है और कैसे है करके. तो वी डोंट वांट टू गो इन दैट डिटेल, बट हमें समझ के रहना कि कंसेप्ट क्या है या फिर लॉजिक क्या है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन जर्मलाइन जीन थेरेपी एंड सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. व्हाई इज दैट डिफरेंस. कौन कौन से ऐसे डिसीजेस है कि जो जर्मलाइन की वजह से ठीक हो सकते हैं, कौन से ऐसे डिसीजेस है कि जो सोमैटिक की वजह से ठीक हो सकते हैं. व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सोमैटिक सेल थेरेपी, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ जीन जर्म सेल थेरेपी. ऐसे पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को. Don't go as a one by one, just look at comparison wise, it helps. And तुम लोग कैसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, what is the difference between the germinal and a somatic cell gene therapy. So जब तुम लोग पढ़ रहे हो प्लीज प्रिपेयर इन दैट वे ओनली कि बाद में ऐसा मतलब
you will not get confused और ऐसा भूलने की कोई चांसेस नहीं होंगी. Obviously we will forget, we tend to forget. ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा एंड ना कि नेक्स्ट मार्च में एग्जाम के लिए याद आएगा. नो, बट देन at least keep the concepts clear so that whenever at least you go through it you will just get it back to okay क्या था अब ये सब समझ ट्राई करते. नहीं तो every time you will be like ऐसा blank mindly you will start reading and it will be like कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, and every time you will feel frustrated कि कुछ नहीं समझ रहा, ये क्या दिया है, ऐसा क्यों दिया है. So don't do such mistakes. Do smart work. Smart work से ही सब होता है. Smart work and hard work combined will give you success. So okay, that's the philosophy. Let's move towards the next part. Genetically modified organisms. So I think मैंने इतने बार ये सब टर्म्स बोला है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो या फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन हो. आई थिंक तुम लोग को अभी तक आइडिया आ गया रहेगा कि इन दिस एंटायर चैप्टर वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मॉडिफाइंग एंड चेंजिंग किसी का तो डीएनए. So in this particular genetically modified organisms, when I say organisms, it is a wide term. Organisms can include animals, it can include bacteria, it can include plants also. So वो सब different classification हम लोग next level पे करेंगे. But this is a broadly when I say genetically modified organisms, what are the basics about it? So ये क्या होता है? It is these are the living organisms whose genetic material has been artificially manipulated. I repeat, because कभी कभी नेचुरली भी कुछ चीजों में ना म्यूटेशन हो जाता है, कुछ एनिमल्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, एंड उनका म्यूटेशन हो जाता है, बट एंड दे गिव सम गुड प्रॉपर्टीज कि अच्छा हाँ मतलब पहले कोई तो प्लांट था या फिर पहले कोई तो बैक्टीरिया था वो नॉर्मल पानी में रहता था, बट आज द सेम बैक्टीरिया कैन स्टे एट 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर पर रह सकता है. मतलब उसने अपने जीनोम में कुछ तो चेंजेस किया है, या फिर बिकॉज ऑफ द नेचर या फिर द टॉलरेंस लेवल फ्रॉम द बैक्टीरिया, nature has evolved and the mutation was there, because of which now the bacteria can survive at 40 degree also and at 80 degree also. So that is something happening naturally, but that is very slow process. जो भी कुछ natural होता है evolution और mutation, it is quite a slow process. जो हम लोग लैब में करते हैं that is quite a fast process, because वो हम induce करवाते हैं. हमारा ऑप्शन ही वही है कि मुझे चाहिए तो चाहिए. अगर I want some gene to get induced, I will make sure कि वो होगा ही. I want some protein to produce, I will make sure कि वो बनाना ही चाहिए. So these are things which are actually controlled in a lab and which are actually हमारे हाथ में होता है कि हमें कैसे करना है. Depends कि हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं एंड हम लोग कैसे सबको हैंडल करते हैं. तो बेसिकली हम लोग जेनेटिकली मैनिपुलेशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स का, which is done artificially in a lab through the methods of genetic engineering. So this creates a combination of, there are plants, there are animals, there are bacteria, there are also viruses which are not present in a nature or which cannot be produced naturally by a traditional crossbreeding वगैरह method से, but it is generally developed in a labs. So इसलिए it is an artificial way. So there are many such examples. So we will mainly talk in terms of plant. तो लोग मैंने already bacteria का example दिया था, the अनंत चक्रवर्ती ऑयल वाला, कि जो बैक्टीरिया था उसको मॉडिफाई करके उन्होंने ऐसे बनाया था कि वो ऑयल खा सकता था या फिर डिग्रेड कर सकता था. So that is one case. Animals का we will discuss in detail and plants का now we will start. So to take a very common examples about the GMOs, there are plants that withstand herbicide or produce an insecticide. So we all know farmers का major issues here, insects and pests and herbs. What are herbs? These are the unwanted plants which generally grow along with my desirable plants, और जो भी मेरा interest का plant है उसके साथ ये सब आ जाता है. And these farmers have to do मतलब after every 2-3 weeks they have to clean up this particular plant, because after some point क्या हो जाता है कि जो अपना plant of interest है उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और ये जो अनवांटेड थिंग्स है उसका ही ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, बिकॉज दे कैन ग्रो वेरी फास्ट एंड दे कैन टेक अप द न्यूट्रिशन. तो जो मेरा प्लांट है इंटरेस्ट वाला जिसको मुझे एक्चुअली ग्रो करना है मेरे खेत में, वो तो ग्रो होगा ही नहीं, एंड दिस unwanted herbs will start growing. So that's why I want something which will be
kill this particular herbs, or this will be help me to remove the herbs from my farm. So that's why there are now some plants which are actually developed in a way that they can withstand the herbicide. So problem क्या होता था कि अगर मैंने वो herbicides को क्लीन करने के लिए या फिर मारने के लिए कोई केमिकल डाल दिया, ओके, सो अलॉन्ग विद द हर्बिसाइड अगर थोड़ा बहुत मेरे प्लांट्स के ऊपर भी गिर गया, तो इवन माई प्लांट्स यूज टू गेट अफेक्टेड, तो उन पे भी अफेक्ट होता था, वो उनका भी ग्रोथ प्रॉब्लम होता था. तो आई वांटेड समथिंग कि जो वेरी वेरी स्पेसिफिक होगा, जो सिर्फ जाके वो हर्ब्स को ही मारेगा, इट विल नॉट डैमेज माय नॉर्मल प्लांट्स. So that is important fact, and with this idea only some plants were developed which are genetically modified plants, and जो कि हर्बिसाइड को विस्टैंड कर सकते हैं. मतलब इवन इफ मैंने हर्बिसाइड स्प्रे किया मेरे फार्म में, तो ये पर्टिकुलर प्लांट पे कुछ अफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ हर्ब्स पे ही अफेक्ट होगा. ओके, then even we are tried to make a plant which act as a insecticide. तो हम लोग को स्पेशली कुछ इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है. जो भी अपने पास प्लांट होगा, द प्लांट में ही हम लोग ऐसा कुछ जीन्स ऐड करेंगे कि वो प्लांट खुद की रक्षा खुद करेगा. इट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट पेस्ट एंड द इंसेक्ट व्हिच आर एक्चुअली इनवर्ड. देन रेजिस्टेंट टू ब्राउनिंग इन द एप्पल. सो वी ऑल नो, हमने अगर किसी ने एप्पल कट किया, आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट टर्निंग द, जब कट करते तो इट्स कम्प्लीटली व्हाइट थोड़ा सा, बट देन थोड़े टाइम के बाद वो पूरा ऐसे ब्राउन हो जाता है. व्हाई? बिकॉज इट स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग. The reaction of oxidation occurs, and because of this the brown color appears on the apple. So this is the problem. So because of this क्या होता है कि मतलब उसका क्वालिटी कम हो जाता है, because it can't stand for a longer time. And for all these things we are now trying to develop or produce a new organisms which can be help us to overcome such problems. So ये सबको एक बोलते ना, multiple problems and one solution kind of thing. So that's why GMOs come in the picture. So let's see now in detail about the transgenic plant. As I mentioned, the word transgenic means the plant जिसका हमने जीनोम थोड़ा अल्टर किया है, या फिर हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, या फिर उसमें हम लोग कुछ ना फॉरेन DNA इंसर्ट किया है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट. देन why do we need the transgenic plants? So traditionally हम लोग जो methods follow करते हैं for plant production or for farming are quite slow. Like it takes time, it's difficult also, and the yield which we are getting, मतलब जो हम लोग को उससे फायदा होता है, that is also not satisfactory. मतलब हम लोग देख सकते हैं कि the farmers are suffering a lot. So that's some basic background. Okay, the traditional breeding procedures that were painstakingly slow and difficult. More recently, now biotechnological approaches have been applied to these plants to create a genetic variations that are beneficial for a mankind. So बायोटेक का तो मोटो ही वो है कि हमें ऐसा कुछ करके दिखाना है कि that will be some or other way help the human beings. तो उनका लाइफ और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दिस इज द मेजर मोटो और वी कैन से ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजिस्ट. ओके, so that's why we are trying to develop different plants which can grow fast, which can be easy to cultivate, which can be easy to remove, जिसपे इंसेक्ट का या पेस्ट का कुछ इफेक्ट ना हो, and they will not or they can survive a high temperature or a low temperature or storms वगैरह. So whatever problem is there, we can try to sort it out using the biotech, and such plants are called as transgenic plants. So the very first transgenic plant which was developed was tobacco. So tobacco, I think if you have basics about the viruses and all, so tobacco is actually a very commonly used and बोलते ना widely used से मतलब widely studied plant. मतलब बहुत ज़्यादा उसमें काम हुआ है, study हुआ है. It is a dicot and it is very commonly studied basically. Even the first virus, the tobacco mosaic virus,
was also invented or found in the tobacco plant only. So tobacco is the first transgenic plant which was produced, and it was like there were more than 6 transgenic dicot plants and several monocot plants like maize, oat, rice, wheat are currently known and are being produced. Also, there are tomatoes, soybean, potato, sugar, beet, grapes, brinjal, cotton, which are produced as a transgenic plant. These are just an example कि क्या क्या है. So we all know there is something called as monocot, there is something called as dicot. Monocot मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन है, और dicot मतलब जिसके पास 2 कोटिलेडॉन्स हैं. So this is the basic about the different examples. And why do we need this particular transgenic plant? So this can be looked up as a bioreactors for a molecular farming. What is bioreactor? Bioreactor is a typical system जहाँ पे हम लोग large production of different useful compounds कर सकते हैं. The compound can be anything. It can be pigment or a colors, dyes, or it can be enzymes or vaccines, or it can be antibiotics, anything. But bioreactor मतलब बड़ा सा system जहाँ पे हम लोग ये सब produce कर सकते हैं. So it can be used for molecular production of novel drugs like interferons. Interferons are the immunological molecules. Then there are something called as edible vaccines. I hope you know what is edible vaccines by now. Then antibodies. Antibodies are the molecules or the proteins which are produced by the body against the foreign material. तो अभी अगर तुमने देखा रहेगा एंटीबॉडीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. अगर कल किसी ने टीवी देखा रहेगा तो पुणे में जो सीरो सर्वे हुआ है, आई होप यू ऑल हैव सीन समवेयर, दे डिक्लेयर्ड पुणे एज अ हॉटस्पॉट फॉर द कोरोना. कि अभी के लिए पुणे सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कोरोना ऑलरेडी होके गया भी. एंड दे डिड नॉट इवन रियलाइज कि हम लोगों को कोरोना हुआ है. कुछ सिम्टम्स नहीं दिखे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुए, बट उनको होके गए ना. वो लोग कैसे पता चला कि उन लोगों को कोरोना हुआ है? हाउ विल दे डिटेक्ट कि कोरोना हुआ था या फिर कैसे हुआ था? तो बेस्ड ऑन दिस एंटीबॉडी. तो जब भी हमारे बॉडी को कोई टिपिकल वायरस या फिर टिपिकल बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, तो मैंने बोला कि बॉडी गिव्स द रिस्पॉन्स. तो बॉडी क्या करेगा जब फर्स्ट टाइम करेगा कोई भी वायरस इन्फेक्शन? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ चिकन पॉक्स अगेन. तो जब मुझे फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुए थे तब मेरी बॉडी को पता नहीं था, बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम. माय बॉडी वाज नॉट रेडी कि चिकन पॉक्स जैसा भी कोई वायरस होता है और जो मेरे को हार्म कर सकता है या फिर इट विल मेक सम प्रॉब्लम फॉर मी. तो माय बॉडी वाज कंप्लीटली अनअवेयर. तो क्या होगा जब मेरे बॉडी को चिकन पॉक्स हुआ, तो एट दैट टाइम आई सफर्ड अ लॉट. पूरे बॉडी पे वो बॉल्स वगैरह आ जाते हैं. इट्स वेरी पेनफुल, इट हर्ट्स एंड ऑल. इट फील्स लाइक क्रैकिंग योर बॉडी एंटायरली. मतलब बहुत ऐसा, इट्स नॉट दैट इजी. ओके, बट दैट वाज द ओनली वंस कि जब एक ही बार ऐसा हुआ था. उसके बाद माय बॉडी बिकेम स्मार्ट. माय बॉडी सेड कि ओके, इसके वजह से ये चिकन पॉक्स होता है, ये वायरस की वजह से. तो नाउ लेट्स प्रोड्यूस समथिंग कि जो ये वायरस को मार सकता है अगर नेक्स्ट टाइम वो आएगा. So at that time my body will take up the, मतलब मेरी बॉडी will take up the चिकन पॉक्स का वायरस, will analyze it कि ओके उसमें क्या है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करेगा, एंड फिर उसके अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाएगा which can be help to protect myself next time from the सेम वायरस. तो जब भी नेक्स्ट टाइम, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज. तो बेसिकली जब भी नेक्स्ट टाइम वायरस मेरे बॉडी में आएगा, आई विल मेक श्योर दैट कि द एंटीबॉडीज विल किल दैट वायरस. तो इसलिए हम लोग को चिकन पॉक्स एक ही बार होता है. इन सेम केस ऑफ जो अभी मैंने बोला अबाउट द पुणे का केस इन सीरो सर्वे, जब इन लोगों ने सब लोगों का ब्लड चेक किया, दे ऑब्जर्व दैट द पेशेंट्स हु वर नॉट लाइक, जिनको कोरोना हुआ नहीं था ऐसे हम लोग समझ रहे थे, उनके बॉडी में भी ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी. तो द क्वेश्चन वाज लाइक अगर इनको कोरोना हुआ ही नहीं है, then how come उनके बॉडी में ये एंटीबॉडीज आए कहाँ से? एंड दैट वाज द मेजर पॉइंट टू रियलाइज दैट कि ओके सो कोरोना कैन बी असिम्प्टोमेटिक. तो अभी जो लोगों का ये नॉर्मल बिहेवियर है कि अरे नहीं मुझे जाना है, मेरी सोसाइटी में कोई इन्फेक्टेड नहीं है, तो मैं ऐसे ही विदाउट मास्क विदाउट एनी सैनिटाइजर आई विल रोम हियर एंड देयर, मतलब मैं यहाँ घूमते रहूँ. बट यू नेवर नो, जो तुम्हारे बाजू में बैठा है द नेक्स्ट पर्सन, he or she can also be infected. It's just that कि वो दिखा नहीं रही, उसका सिम्टम्स नहीं दिख रहा है.
इट्स नॉट लाइक कि वो इंडिविजुअल और फिर ही और शी इज डूइंग इट पर्सनली, मतलब इंटेंशनली वो कर रही है, बट इट इज लाइक कि उसको खुद को भी पता नहीं कि वो इन्फेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू follow all these rules and regulation very strictly. So all these things are like, just keep in mind, this antibodies play very important role. There is, that's why एक न्यू थेरेपी आया था. आई होप यू ऑल, तुम लोग, आई डोंट नो कितने लोग अभी कोरोना को फॉलो अप करते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि प्लीज रीड अबाउट इट. मतलब जब भी कोई नया न्यूज आता है पेपर पे या फिर न्यूज टीवी न्यूज पे, सुनो पढ़ो, बिकॉज ना इट विल जस्ट गिव यू थोड़ा इनसाइट्स अबाउट जो हम लोग अभी डिस्कस करें. इट कैन बी एंटीबॉडी, इट कैन बी डायग्नोस्टिक किट और व्हाटएवर. जो भी हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं तुम लोग उसको लिंक कर सकते हो, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं अभी, जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ अबाउट एंटीबॉडीज या फिर एंटीजन या फिर कोई सेल्स वगैरह, वैसे हवा में कभी नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये 20 साल बाद होगा या 50 साल बाद होगा. ऐसे में सुपरफिशियली कुछ ऐसे हवा में आपने नहीं बता रहा हूँ. इट इज समथिंग जो करंटली यूज में है और इट इज अंडर डेवलपमेंट कि हम लोग और फास्ट डेवलप कर सकते हैं. So please try and do it and please follow. It is always good to have information, especially about the corona. Just do not believe on a WhatsApp university or जो भी आ रहा है करो forward, जो भी आ रहा है read करो and कुछ तो काढ़ा बना के पीते रहो. It will not work in that way. So that is just hints about antibodies. Then we all know there is something called as amino acids. Amino acids are the building block of proteins. So जिसकी वजह से proteins बनता है. These are important biomolecules. And there are many immunotherapeutic drugs. So drugs which are actually help to prevent a body from different diseases. So these are called as immunotherapeutic drugs. So I hope you understand this particular slide. कुछ doubt होगा तो you can ask right now. Any doubt? हाँ सर, वो बुक में है ना 60 दिया हुआ है सर, मोर देन 60 ट्रांसजेनिक डाइकोट प्लांट्स. Yeah, sorry. और सर एक बार ये बता दो ना शॉर्ट में, मतलब ये जो सी वाला पॉइंट था जीन थेरेपी और ये अभी जीएमओ, उनके बीच का डिफरेंस बता दो ना सर, एक मेन डिफरेंस क्या है? Okay, so germ cell therapy और somatic cell therapy का ना? नहीं सर, ये जीन थेरेपी और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. Gene therapy is a technique. Okay, it is a method. हम लोग generally, it is a application we can say. Recombinant DNA टेक्नोलॉजी ये मेजर टेक्निक था जो हम लोगों ने सीखा था, या फिर हम लोगों ने उसके बारे में सब समझने की कोशिश की थी कि ओके व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग क्या, ओके उसमें जीन रहता है, उसमें क्लोनिंग वेक्टर रहता है, उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं लाइगेज से, फिर उसको हम लोग होस्ट में डालते हैं. इट इज अ टेक्नोलॉजी. ओके, So now what is gene therapy? Gene therapy is the application of this technology. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I will take up a gene जिसको मैं यूज करूँगा for modification of organism because of which I can, मतलब इसकी वजह से मैं किसी भी डिसीज को ट्रीट कर सकता हूँ. मतलब अगर मैं बोलूँगा कि लेट्स से एग्जांपल ऑफ दिस सिकल सेल एनीमिया, तो मुझे अगर सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करना है तो आई विल use a gene for sickle cell anemia and I will insert. तो जो इंसर्शन का मेथड रहेगा that is the something related to जो हमने recombinant DNA में किया था. Okay, so gene therapy is just a application of a recombinant DNA technology. Okay, it is not ऐसा you can compare gene therapy with the GMO. GMO में भी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सेम टेक्निक फॉलो कर रहे हो. टेक्निक इज कॉमन, recombinant DNA technology or a gene clone, but application. So in gene therapy, mainly I am trying to recover or treat a disease. ठीक है, कि जो भी होंगे कि वो जर्म लाइन से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर सोमेटिक से रिलेटेड हो सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू क्योर अ डिसीज. बट जीएमओस में मेरा एजेंडा और मेरा मोटो इज टू प्रोड्यूस द डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट एनिमल्स जिसमें कोई डिसीज वगैरह नहीं है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आई वांट टू ऐड सम गुड प्रॉपर्टीज. तो अगर काऊ है, लेट्स से ट्रांसजेनिक काऊ है, तो आई वांट कि वो काऊ ज्यादा मिल्क दे, तो मैं उसको और ऐसा कुछ जिन डालूंगा उसके अंदर कि वो दैट जीन विल मेक द काऊ टू प्रोड्यूस मोर मिल्क. अगर कोई बैक्टीरिया है जिसको आई वांट कि जो बैक्टीरिया को लेट्स से कि ऑयल डिग्रेड करना चाहिए बिकॉज ऑयल स्पिल्स इज द मेजर प्रॉब्लम, तो आई विल ऐड अ जीन इन अ बैक्टीरिया दैट विल help the bacteria to degrade the
ऑयल, सेम वे आई वांट अ प्लांट जो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सके, तो आई विल ऐड अ जीन इनटू अ प्लांट which will provide the resistance to the plant. तो जीन थेरेपी इज समथिंग अ मेथड और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे हम लोग कोई डिसीजेस को रिकवर या क्योर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग. एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑर्गेनिजम्स इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, मे इट बी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, बट हम लोग का मोटो इज टू प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिसके पास अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज रहेंगी जो हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है इन अ फ्यूचर. सो द बेसिक डिफरेंस इज लाइक जीन थेरेपी is used to cure different disease क्योर करने के लिए यूज करते हैं, and GMOs are generally used to produce different good characters or to add some characters or so delete some unfavorable characters ऐसे. So that is the only difference. But the most common thing is that both gene therapy and GMOs are applications of recombinant DNA technology. Okay. Yes sir, thank you. डिफरेंस बोलना है तो डिफरेंस कैन बी देयर बिटवीन जर्म लाइन सेल थेरेपी एंड सोमेटिक सेल थेरेपी, देन तुम लोग बोल सकते हो कि उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है. बट जीएमओस एंड जीन थेरेपी देयर इज नो सच डिफरेंस बिकॉज दोनों भी एप्लीकेशंस है और दोनों को भी अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, तो हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के, बिकॉज ईच फैक्टर एज अ उसका खुद का एक यूनिकनेस एंड इम्पोर्टेंसनेस, सो वो एक डिफरेंस है. ठीक है. So I hope Yes sir. yeah. So उसके बाद now we talk about the interferons, edible vaccines, antibodies, amino acids, and the drugs. Then there is the advantages of the GM plant. Each of these हम लोग discuss करेंगे in a detail. But I will just read out for this. So इसका detail version हम लोग कल start करेंगे. So the advantages includes the insect pest resistance, जहाँ पे हम लोग insect से बचाव करने के लिए या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं. देन इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, मतलब किसी के पास अगर 5% ही कार्बोहाइड्रेट है तो उसको मैं 50% कैसे कर सकता हूँ, प्लांट में कैसे बना सकता हूँ वो देखना. देन मॉडिफिकेशंस इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बना दिया है ओके प्लांट में है भी हूँ बट उसको निकालना कैसे और यूज कैसे करना है वो देखने के लिए. Then plants as a factories, जैसे देखा हम लोग, plants can be vaccine, plant can produce antibodies, and plants can also produce some interferons or some drugs. So that is another application or an advantage. And then comes transgenic plant producing edible vaccines in a detail. कि वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं. So this each one, there are 5 advantages of the genetically modified plants. So हम लोग सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क. एनी डाउट? कोई डाउट है? No sir. एक तो सबको सब कुछ समझ रहा है या फिर किसी को कुछ समझ नहीं रहा है, प्लीज बोलो बिकॉज. सर एक डाउट है पर वो इस चैप्टर में से नहीं है, पूछ लो क्या अभी? हाँ पूछो. सर वो जो आपने ये पढ़ाया था ना सेक्स लिंकेज वाला,